Now I'm going to share this screen. Write yes if you can see the screen. So let me just change the topic name. Here the topic name for today is complex numbers. All right. So everybody can see this screen. Now let us take this particular topic, complex numbers. It's a very simple topic, complex numbers, and I'm sure everybody will be having this in your syllabus because it's a very important topic. So when I say complex numbers, we will be talking about quadratic equations also after we do complex numbers. So because these two topics are generally studied together. This particular thing, complex numbers, is a part of your algebra. If you see your syllabus, algebra has been given a lot of weightage. And complex number is one of the biggest topics in algebra. With a very positive note, let us begin this session. Write down the topic, complex numbers. Kashifa and Astha are two people who are going to do the formal session right just from today. So please, I reiterate the rules that it has to be very much communicative. So every time I say, did you understand? You are supposed to write yes, no, repeat, whatever in the chat box. Okay. Do not watch the class as you watch a movie. History class, geography class is not like that. It's maths. So you have to parallelly work. When I'm doing any calculation, you should be doing it faster than me. You know, मेरे से एक step आगे आप करोगे, and if I am making any mistake, you should stop me. सर यहाँ गलती है, वहाँ गलती है, सर ये वाला कैसे हुआ, सर मैंने तो ऐसे किया, आपने ऐसे कैसे किया, right? So make it very healthy and communicative in nature, then we'll get the best out of it. Okay. Now let us take this complex numbers. People, when you classify numbers, we study numbers. Maths is all about numbers. So when we classify numbers, we basically have two kinds of numbers. One is the real numbers and the other comes is the complex numbers. Complex numbers is a very new concept. People have been working with real numbers. But when mathematics advanced, people thought that let us increase our horizon and include more numbers. So that gave birth to actually complex numbers. So when you see real numbers, numbers which actually exist in nature, right, real ones, जिसको आप पढ़ सकते हो, इसको यूज कर सकते हो बहुत आसानी से, you know, they are actually real as the name indicates. When you say complex, it is actually imaginary, right? So when you say complex, it's actually imaginary numbers. If you say 3 is a real number, 4 by 7 is a real number, 1.5 is a real number. But the moment you say 2 plus 3i, wherever you come across I, that becomes your complex numbers, right? So what is this particular thing I? We will discuss very soon, but hope you understand that numbers which will contain the I actually stands for iota, but this is the imaginary part of this number. So numbers which will contain I, they will be actually complex numbers, right? Let us understand like this. Suppose I say complex number is represented in the form of a plus ib. Any number of the form of a plus ib is actually called complex number.
complex number is actually made up of real numbers and imaginary numbers. अगर आप देखो जैसे कि मान लो 3 + 2i ऐसा कुछ, अगर यहाँ पर b 0 हो जाएगा, अगर if b is equals to 0, you are actually left with a, and then this a is called your real number, क्योंकि इस a के पास कोई i नहीं है. Similarly, if you put a equal to 0 in this, you will get ib. तो जो नंबर ib है, then that is called imaginary part of that complex numbers. So basically 3 + 2i, ये जो 3 है, this 3 is the real part, real, इसके पास i नहीं है, and this 2i is the imaginary part of that complex numbers. Right? Okay, if you have understood. Everybody. Piyush, you joined just now. We are doing complex numbers. We will do mathematical induction later once it is confirmed from everybody. आस्था समझ में आ रहा है? Right? Yes. ठीक है? Now, can somebody tell me x square minus 4 equal to 0? What are the values of x? Obviously, x square is equals to 4. So x is equals to square root of 4 plus minus. I mean, the answer will be plus minus of 2. मतलब x is equals to 2 भी satisfy करेगा, x is equals to minus 2 will also satisfy. हेलो सर, वो चैप्टर हटा दिया गया पूरा. अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, मुझे लग रहा था बिकॉज वरुण सर ने भी बोला. सो एनीवे, देख लेते हैं, इन लोग से तरफ से भी कंफर्म हो जाएगा, वरना उसको स्किप कर देंगे. ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है राहुल ये सब? कशिफा, इज दिस ओके? यस सर. तो देखो, पहले क्या था कि इफ इट इज x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x के जो रूट्स आएंगे इसको हम कहते हैं रियल रूट्स. सर रूट्स मतलब सर रियल सोल्यूशन. इसके जो वैल्यूज आ रहे हैं ये रियल नंबर्स हैं. देखो आई नहीं है, बट साइंटिस्ट लोग अगर सॉल्व कर रहे थे ना, उनके पास एक अचानक ऐसा इक्वेशन आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. तब उन लोगों ने डिस्कस किया यार क्या करे. इसको अगर उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश किया, x स्क्वायर इक्वल टू -1, ऐसा तो कभी नहीं होता है. कोई भी नंबर का जो स्क्वायर होगा, नेगेटिव नंबर लो x का या तो पॉजिटिव लो, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है. तो फिर कोई जबरदस्ती ऐसा लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ -1. अब ऐसा लिख दिया तो इसको फिर दूसरे साइंटिस्ट ने कहा भाई इसका नाम ना आई दे देना. इट्स अ ग्रीक वर्ड विच इज नथिंग बट आयोटा. इसका नाम है आयोटा बोलते हैं. तो आई एक सिंबल है. इट इज अ सिंबल ऑफ इमेजिनरी नंबर, एंड इसका रीड करेंगे इसको आयोटा. और आई का वैल्यू कितना होता है? तो स्क्वायर रूट ऑफ -1. सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आई स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आ जाएगा -1. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो व्हाट आर वी एक्चुअली सीइंग कि आई क्या है? सबसे पहले ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है. और आई का वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1. अगर कहीं पर आप देखो इट इज रिटन एज 4i, तो मतलब क्या है? ये है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1. अगर कहीं पर आप देखो -2 का रूट दिया हुआ है, ये क्या है? एनीबडी? अगर -1 और अंदर में 2, इसको अगर आप अलग करो तो ये है -1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये वाला पोर्शन तो i है, और मल्टीप्लाइड बाय √2, इसको हम लोग लिखते हैं i√2. सर नहीं समझ में आया सर. स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये क्या है? तो √5i. यस, -1 इंटू 5 है, तो ये एक्चुअली i√5 है. सर ये वाला नहीं समझ में. अगर सर -7 यहाँ क्यूब रूट रहता तो सर, तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट it has to be square root, then I part will be coming out. So I hope you understand the meaning of I.
कॉपी कर लो एंड लिखो कॉपीड। महिमा, इज दैट ओके? copied, wonderful. Now let us understand it like this. So what is the value of I? Square root of minus 1. What is I square? So square root of minus 1 multiplied by square root of minus 1, it comes out to be minus 1. नहीं समझे? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये तो 2 हो जाता है ना। तो व्हाट इज क्यूब ऑफ आई? आई क्यूब क्या होगा? तो आप ऐसे लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई, एंड व्हाट इज आई स्क्वायर? माइनस 1 और इंटू आई, तो आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई। व्हाट इज आई पावर ऑफ 4? तो इसको आप दो बार लिख सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय अनदर माइनस 1 इज एक्चुअली 1। सर आप क्या कर रहे हो, ये सारा वैल्यूज मुझे याद रखना है क्या? नहीं जी, उतना आपको याद नहीं रखना है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। मैं ग्राफ में समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो ये एक प्लेन में ड्रॉ होता है। इस प्लेन का नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन या तो आर्गैंड प्लेन। क्या नाम है जिसका? कॉम्प्लेक्स प्लेन या तो आर्गैंड प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसमें कि एक्स एक्सिस जो होता है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी पार्ट। मतलब क्या कि अगर मैं लिखता हूं 2 प्लस 3i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय z। लिख लो, अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे z इंटीजर हम लोग वहां पढ़ते थे ना फंक्शंस में, कॉम्प्लेक्स नंबर को ये लोग z से डिनोट करते हैं। तो एक मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका वैल्यू ये है 2 प्लस 3i। इसको हम लोग ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। क्या? इसका जो रियल पार्ट है 2 यूनिट, 1 2 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3i, द इमेजिनरी पार्ट विल कम ऑन द y एक्सिस। सो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो पॉइंट कहां पे आ जाएगा? यहां पे। इसको हम लिख सकते हैं 2,3। I hope you understand. So this number z has been represented as 2,3. Can somebody tell me where will I be represented as? I is the imaginary number. तो I कहां आएगा? तो I think पहली बार I यहां पे आएगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर का I पावर ऑफ 1 है ना। तो ये पॉइंट यहाँ y एक्सिस पे आएगा। व्हाट इज I स्क्वायर? यहां पे आएगा -1 पे। व्हाट इज I क्यूब? यहां पे आएगा -i कहलाएगा, ये है +i। एंड व्हाट इज I पावर ऑफ 4? 1 1 मतलब राइट हैंड साइड में। सर क्या कहना चाहते हो सर? देखो इधर एक एक्सिस बनाओ, ये है रियल लाइंस, ये है इमेजिनरी लाइंस, ये है आर्गेंड प्लेन या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहां पे 1 है, यहां पे -1, यहां पे आता है i और यहां पे आता है -i। अगर आप इसको एक सर्कल जैसा बना दो तो इसको हम कहते हैं यूनिट सर्कल। इसका रेडियस 1 यूनिट है, देखो यूनिट सर्कल। कशिफा, यू कैन नोट दैट I पावर ऑफ 4 इज 1। मतलब क्या कि यहां से घूम करके आएगा 1 2, ये वाला I पावर ऑफ 4 इज 1। सो दोबारा जो या तो I पावर ऑफ 0 भी देखो 1 होगा। So I power of 0 is 1, I power of 1 is I square is -1, I power of 4 is 1। समझ रहे हो? I power of 0, I power of 1, I power of 2 and I power of 3 and again I power of 4। अब I power of 8 क्या आएगा? फिर 1, जैसे कि 1 यूनिट 2 3 4, then I power of 8 will be again 4, I power of 12 will be again, sorry, I power of 8 will be 1, I power of 12 again will be 1। दैट मीन्स I के पावर में अगर 4 का मल्टीपल हो तो रिजल्ट ऑलवेज 1 आएगा। लिखो ओके इफ यू हैव अंडरस्टूड।
कॉपी कर लिया हर कुछ? Just write okay if you have understood, copied, and you want me to go to the next one. Astha, Kashifa, recordings will be available. You can always listen to it later on also, but that does not mean that you will miss on anything in the class. देखो, लाइव क्लासेस का एक फायदा क्या होता है, इट इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड अप्रोच कि सर जो पढ़ा रहे हैं इतने घंटे में इतना कुछ कंप्लीट हो जाएगा. रिकॉर्डिंग सुनोगे नहीं सुनोगे पेंडिंग रह जाएगा एंड स्टफ्स लाइक दैट. So I hope you understand. So if somebody is asking you to find the value of I power of 9, then it is not difficult because I power of 8 into I power of 1 में सेपरेट कर सकते हैं. सर ये वाला नहीं समझ में आया सर. जैसे कि मान लो 2 पावर ऑफ 5 है, तो इसको आप लिख सकते हो ना 2 पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर ऑफ 1. बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा. उसी तरीके से I पावर ऑफ 9, तो जो 4 का मल्टीपल्स है उसको अलग कर लो एंड द रिमेनिंग 1, क्योंकि जो पावर में जो 4 का मल्टीपल होगा दिस रिजल्ट विल ऑलवेज बी 1 मल्टीप्लाइड बाय I पावर ऑफ 1 एंड द आंसर इज I. तो सर आपने क्या किया सर, मैंने I के पावर ऑफ 9 को रिड्यूस कर दिया I के पावर ऑफ 1 में. सो दिस इज हाउ यू रिड्यूस हायर पावर्स ऑफ I टू लोअर पावर्स. जैसे कि I पावर ऑफ 2005, कैन somebody tell me the value? Write the answer in the chat box. Write the answer in the chat box. Everybody. No, राहुल इतना कॉम्प्लेक्स मुझे मत दो यार, मेरे लिए तो सिंपल दो. अब आपने तो मेरे लिए क्वेश्चन ही बना दिया. हाँ सर आई होगा. Correct, that's true. Kashifa, what about you? Astha, I. That's good. So you can see that it is I power of 4 to the power of 500 मल्टीप्लाइड बाय I पावर ऑफ 1. सर ये वाला आपने क्यों किया सर, क्योंकि यार I के पावर ऑफ 4 1 होता है, तो 4 का जितना भी मल्टीपल होगा 4 इंटू 1 2 4 इंटू 500, एक्चुअली I पावर ऑफ 4 टू द पावर ऑफ 200 500 का मतलब होता है I पावर ऑफ 4 इंटू 500. A टू द पावर ऑफ m टू द पावर ऑफ n होता है A पावर ऑफ m इंटू n. महिमा लिख लो इसको. सो दैट्स इट. 501 होगा ना? हाँ 501 होगा, ये 1 को मैंने अलग कर दिया. नहीं 501 फिर अलग से 1. नहीं. ओहो सॉरी यार, ये तो 2005 है ना, तो 2000 तो फिर कितना हो जाएगा 501 एंड अलग से 1. दैट्स करेक्ट. सर 4 कैडबरी. 4 हो गया यार, नुकसान हो गया मेरा. हाँ ठीक है. चलो ठीक है, आ जाओ फटाफट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1 minute. Thirty seconds more. होने के बाद लिखो डन.
in the chat box. Okay, your time is up. All right, pretty easy. I power of 19 है, तो I power of 16 and I cube हो जाएगा. ठीक है, तो I power of 16 multiplied by I power of 3, and I power of 16 is 1 into I cube, and I cube also you can write I square into I, and I square का वैल्यू -1 and I का वैल्यू सिर्फ I, तो आंसर होगा -I. Then I power of 62 is I power of 60 into I power of 2. I power of 60 is divisible by 4. 60 is divisible by 4. This is 1. I square is already -1. Answer is -1. I power of 373. अच्छा, कुछ लोगों को ये ना 4 से डिविजिबल होके कितना बचेगा ये निकालने में दिक्कत आती है. 372. All right, so you can see that what is the divisibility rule of 4. लिख लो नेक्स्ट पेज में. What is the divisibility rule of 4? A number is divisible by 4. जैसे कि मान लो 372. It is divisible by 4. कैसे चेक करेंगे? Last 2 digit चेक करेंगे. So if the last 2 digit is divisible by 4, then this number is divisible by 4. 1786. Is it divisible by 4? No, because 86 is not divisible. So this number is not divisible. X 184,196 and ये y भी है, इतना बड़ा नंबर है. Is it divisible by 4? Answer is yes. The last 2 digit is divisible by 4. सर ये yx क्या है सर? दो नंबर है जिसको वैल्यू नहीं दिया हुआ है, but you are not interested in this. So लिख लो divisibility rule of 4 means check if last 2 digits are divisible by 4. अब से डिविजिबल अगर नहीं है, जैसे कि मान लो 375 ये डिविजिबल नहीं है, तो कितना में ये बटेगा, कितना डिफरेंस बचेगा? तो 375 को क्या करो, 4 से डिवाइड कर लो. तो 4 से अगर डिवाइड करोगे 4 9s are 36 and 4 3s are 12 and the remainder is 3. इसका मतलब 375 कैसे टूटेगा? 375 i के पावर में है ना, मान लो जैसे कि i पावर 375, इसको आप क्या लिखोगे? i पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय पावर में 93 इंटू i पावर ऑफ 3. एक्चुअली 4 इंटू 93 प्लस 3 होता है 375. पीयूष समझ में आया? आप लोग कौन सा फॉर्मूला बोलते हो? नंबर इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. So 375 is actually equal to 4 into 93 plus 3. इसी कारण 375 को आपने लिखा 4 into 93 अलग से plus 3. So ये वाला तो बड़ा इजी है, 372 है. सर जब सॉल्व करेंगे तो i 4 to the power लिखना है कि डायरेक्टली i to the power 372? देखो i to the power of 372 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कि ये 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है. बट नंबर जब बड़ा रहेगा तो आपको देखना होगा कि ये अलग आकर के कितना बचेगा. जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं i to the power of 317,186,189, मान लो इतना बड़ा नंबर है, तो ये i के पावर में कितना होगा एंड रिमेनिंग i कितना बचेगा ये आपको आना चाहिए. इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? बनाओ इसको, इसका वैल्यू निकालो. कशिफा, tell me the answer. This is from my side. Do it. पीयूष बताओ. Yes, any answer? I think this is pretty easy. आप देख सकते हो ये वाला 88 तक जो होगा, 88 इस 89 है ना, 88 तक जो होगा डिविजिबल बाय 4 होगा मल्टीप्लाइड बाय i पावर ऑफ 1. ये वाला पोर्शन 1 into i पावर ऑफ 1. आंसर इज i. गॉट इट?
तो अगेन यहाँ पर हमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, इफ यू कैन सी कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है. वेरी गुड. चलो एक क्वेश्चन बनाओ. I पावर ऑफ 2000 प्लस I पावर ऑफ 2001 प्लस I पावर ऑफ 2002 प्लस I पावर ऑफ 2003. मेक इट फास्ट. आंसर क्या आएगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1 minute. और यहाँ पे एपी सकता है क्या यूज? हाँ, करना चाहो जीपी कुछ भी है, बट यहाँ पर वैसा तो एपी में नहीं है. ऊपर वाला पावर एपी में है. दैट्स फाइन. Okay, your time is up. Any answer? Answer is 0. Kashifa is getting 0. All right, that's good. Okay, how are you doing, Kashifa? Are you doing it like this? I पावर ऑफ 2000 अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा 1, ये बन जाएगा I, ये बन जाएगा I स्क्वायर, ये बन जाएगा I क्यूब. करेक्ट. एंड I पावर ऑफ 2000 का वैल्यू होता है 1, and 1 plus I square is minus 1 and I cube is minus I. I think ये वाला पोर्शन कट जाएगा. This is equals to 0. नोट करेंगे जी. क्या है कि अगर पावर कंजिक्यूटिव है, जैसे कि 2000, 2001, 2002, 2003, 4 कंजिक्यूटिव, 1 2 3 4, 4 कंजिक्यूटिव पावर्स ऑफ आईज अगर आप ऐड कर रहे हो, देन सम विल ऑलवेज बी 0. लिखो, if 4 consecutive, ये शॉर्टकट ले सकते हो, if 4 consecutive powers of I is there, then sum is equals to 0. तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी. लिखो कॉपीड. पीयूष, you there in the class? सर क्या कहना क्या चाह रहे हो? जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं I पावर ऑफ 2197, I पावर ऑफ 2198, I पावर ऑफ 2199, I पावर ऑफ 200, तो इसको आप सॉल्व भी नहीं करोगे, आंसर क्या बोलोगे? 0. आंसर क्या आएगा इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी जल्दी बनाओ, शुरू हो जाओ. -1 सर. 0 प्रूव करना है ये. सॉरी, आंसर लाना नहीं है, इसको प्रूव करना है. प्रूव दैट. क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. गिविंग यू 1 minute. मेक इट फास्ट. तीनों क्वेश्चन ट्राई करो.
All right, your time is up. I think first one is very simple. 1 I square is minus 1, I power of 4 is plus, I square is minus 1, 1 is minus 1. Yeah, I power of 4 is plus 1 and I power of 6 is again minus 1. The value is 0. Now, ये वाला देखो 2, 4, 6, 8, 20. I power of ये 1 है. इसको 1 प्रूव करना है. क्या करेंगे जी? मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले जा रहा हूँ. यहाँ पर स्पेस कम है. इसको कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे. ठीक है, चलो. अच्छा, क्या मैं सारा निकालूं बैठ करके? 1 is I power of 4, right? But anyway, I will leave 1 as it is. ये I square मैं कॉमन निकाल लूंगा, तो ये बच जाएगा 1. I square कॉमन है तो 1 बच जाएगा. एंड I पावर ऑफ 4 है तो I square बच जाएगा. I क्यूब I पावर ऑफ 4 डॉट 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 टिल I पावर ऑफ 20. यस और नो? 1 को छोड़ दिया, I square कॉमन निकाल लिया. दिस इज 1 I square I क्यूब. नो, 6 होगा कॉमन. सर आई 10 होगा ना लास्ट. हाँ, दस करेक्ट. ये भी वाला भी 10 होगा और ये वाला वैल्यू चेंज होगा. देखो इधर I स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालोगे तो दिस विल बी 1. नेक्स्ट I पावर ऑफ 4 बाई I स्क्वायर, I पावर ऑफ 2. नेक्स्ट I पावर ऑफ 6 बाई I स्क्वायर, देन I पावर ऑफ 3, आई मीन I पावर ऑफ 4. दो घटेगा ना, डिक्रीज होगा. सर फिर करके क्या फायदा, कंसेक्यूटिव तो आएगा नहीं. भाई कंसेक्यूटिव इसमें आ नहीं रहा है, राइट? अच्छा, कंसेक्यूटिव पावर आने के लिए हमें कितना कॉमन निकालना पड़ेगा? 2. It is 2 into 1, this is 2 into 2, this is 2 into 3. राइट, जैसे कि I पावर ऑफ 6 क्या है? I पावर ऑफ 6 है I पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 3. राइट, तो anyway, I don't think that is going to help. No issues. So we can directly find out the values. We know power 4 जब रहेगा तो 0 होगा. ठीक है, but there will be a pattern definitely. लिखो 1 I स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 I पावर ऑफ 4 +1 I पावर ऑफ 6 -1. देख रहे हो? एंड I पावर ऑफ 8 फिर 1 एंड I पावर ऑफ 10. I पावर ऑफ 10 क्या होगा? I पावर ऑफ 8 इंटू I स्क्वायर इज अगेन -1. समझ रहे हो? तो +1 +1 -1 +1 -1 चलेगा. कितना चलेगा? कितने टर्म्स हैं? अब देखो यहाँ 2 से लेकर के 20, 2 से लेकर के 20 कितने टर्म्स है? 2, 4, 6, 8, 20 तक. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 20/2 + 1, दैट इज 11. कॉमन डिफरेंस 2 का है. आप ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, TNF इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D. AP में है. तो फर्स्ट टर्म, last term is 20, first term is 2, number of terms I don't know, common difference is 2. वही मैंने किया. 20 minus 2 18, 18/2 9, 9 plus 1 10 आएगा, right? Anyway, it is half. So 10 terms plus 1 11 terms. So every 2 terms will get cancelled. First term will cancel the next term, first term will cancel the next term. There will be one term which will be left and that term will be 1. So our answer is 1. Correct? Is that okay? नहीं clear? Right, clear, not clear? Right, clear, not clear? Clear. Anybody wants me to repeat? No? That's good. 11 terms है actually. ये जो terms है ना, 10 टर्म, तो
10 माइनस 5 माइनस 1 आएगा, 5 प्लस 1 आएगा, 5 माइनस 1 आएगा, 5 प्लस 1 आएगा, इस तरीके से सारे कट जाएंगे, ये एक बच जाएगा, दैट्स इक्वल टू 1. सिमिलरली नाउ टेक आउट दिस वन, 53 72 93 102, इसका वैल्यू निकालो, ट्राई आउट. इसमें क्या करेंगे, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, और यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट 4 का टेबल में. तो आई पावर ऑफ 52 इंटू आई, ये वाला आई पावर ऑफ 72 1 है. What is I power of 93? I power of 92 into I. What is I power of 102? I power of 100 into I square. So this is I, this is plus 1, this is plus I, this is minus 1. Plus 1 minus 1 gone, I plus I is 2I. Easy. Oh, this is done. Let's take another one. Solve this. Prove that. आस्था बनाओ इसको. Done? Alright, Kritika has done it. Alright, under root minus 16 है. अंडर रूट माइनस 16 को क्या लिखेंगे, 4i. यस पीयूष, इज दैट ओके? जैसे कि माइनस 16, तो माइनस 1 इंटू 16, माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16, 16 का निकलेगा 4, और ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 निकलेगा i. सो 4i. सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज 4i. सिमिलरली ये वाला पार्ट कितना है, 3 बाहर है, और ये निकलेगा 5 इंटू 5i प्लस 6i, 36 है ना, प्लस 25i, राइट. सो 4 प्लस माइनस 25i. ओ यहाँ माइनस है, करेक्ट. आपका भी चॉकलेट. तो बाहर निकाल लो आई. I think this is 25, this is minus 25, so answer is 0. Easy. Now let us go to the next one. Acha, can somebody tell me what is the value of 1 by I? Anybody write down. What is the value of 1 by I? One last question. इसमें एक सीरीज वाला भी हम लोग करते हैं, ठीक है. या सो यू कैन सी दैट ऊपर नीचे मैं i से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 इंटू i, एंड नीचे i इज देयर, अनदर i कैन मल्टीप्लाई. सो ऊपर में i हो जाएगा, नीचे हो जाएगा i स्क्वायर, ऊपर में i स्क्वायर का वैल्यू -1, ये माइनस i हो जाएगा. एक्चुअली 1 बाई i का वैल्यू माइनस i होता है, रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इन दिस पैटर्न, मेक इट फास्ट. प्रूव दैट. The time starts now. 1 minute.
Okay, your time is up. Any answer? Done? Anybody? Kritika has done it. All right. Anyone else? Chalo. First of all, understand the meaning of the sigma. What is the meaning of the sigma? It is summation. I mean, when n will be equal to 1, your term will be I power of 1 plus I power of 1 plus 1, 2. This will be first term. जब आपने n का वैल्यू 1 पुट किया, प्लस जब आप n का वैल्यू 2 पुट करोगे, दिस विल बिकम I स्क्वायर प्लस I पावर ऑफ 3, प्लस जब आप n का वैल्यू 3 पुट करोगे, इट विल बी I क्यूब प्लस I पावर ऑफ 4, डॉट 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 टिल लास्ट में आप n का वैल्यू क्या पुट करोगे. इट मीन्स दैट समेशन करो n 1 से लेकर के 13, देयर विल बी 13 टर्म्स, 1 2 3 एंड लास्ट वाला होगा 13. सो I पावर ऑफ 13 प्लस I पावर ऑफ एक नेक्स्ट 14. इसका वैल्यू आपको प्रूव करना है कि ये -1 प्लस I है. n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर. ऑल राइट, आई हैव टेकन ऑल द नेचुरल नंबर्स ओनली. ठीक है. नाउ अच्छा, आप लोगों ने जीपी पढ़ा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा है. देखो इधर एक बार. आई थिंक ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी डन इफ यू यूज द जीपी फॉर्मूला. ऑलराइट, जीपी के बिना फिलहाल कर लेते हैं. ठीक है, बाद में आप लोग देख. तो क्या है कि आई स्क्वायर आई क्यूब आई 13 को अलग कर लो. आई पावर 1 आई स्क्वायर आई क्यूब डॉट 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 आई पावर ऑफ 13. उस तरीके से प्लस आई स्क्वायर ये वाला टर्म आई क्यूब. आई मीन यू कैन ऑल्सो एड, राइट. आई मीन आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर विल बी 2 आई स्क्वायर आई क्यूब, बट एनीवे. और लास्ट वाला टर्म क्या होगा? आई पावर ऑफ 14. ठीक है. आपको मैंने ये बताया था ना कि आई स्क्वायर आई क्यूब एंड आई पावर ऑफ 4 का वैल्यू 0 होगा. करेक्ट. कंसेक्यूटिव अगर 4 टर्म होगा तो 0 होगा. ये मैंने बता रखा है. अग्री? तो आप यहां पर देखो कि 4 का कितना ब्लॉक बनेगा. यहां अगर 13 टर्म्स है तो 4 का ब्लॉक, फिर 4 8, फिर 4 12 टर्म्स हो जाएगा. आई से शुरू होता है. आई पावर ऑफ 1 आई स्क्वायर आई क्यूब आई पावर ऑफ 4, क्योंकि याद है 1 ये आई, ये -1, ये -i, ये +1, ये कटता था. तो कहने का मतलब 4 का जो ब्लॉक है आई से शुरू होगा. लास्ट वाला जो टर्म बचेगा वो होगा आई पावर ऑफ 13. अग्री? और ये सारा वैल्यू 0 हो जाएगा. ये 0, ये 0, ये 0. सिमिलरली इसमें क्या होगा जी? इसमें कितने टर्म है? 2 से लेकर 14 तक. 1 से लेकर के 14 होता तो देयर वुड बी 14 टर्म्स, मगर 2 से लेकर 14 तो यहाँ भी 13 टर्म्स है. 13 टर्म्स मतलब क्या? 4 का जो ग्रुप बनेगा यहां से शुरू करोगे. आई स्क्वायर आई क्यूब आई 4 आई पावर ऑफ 5, तो 4 12 एंड द लास्ट टर्म विल बी आई पावर ऑफ 14. ये वाला भी 0, ये 0, ये 0. तो व्हाट इज आंसर? आई पावर ऑफ 13 प्लस आई पावर ऑफ 14. व्हाट इज आई पावर ऑफ 13? और यू कैन टेक आउट आई पावर ऑफ आई पावर ऑफ 13 कितना हो जाएगा? आई. आई पावर ऑफ 14 कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर. आई स्क्वायर मतलब -1. तो आंसर हो गया -1 प्लस आई. दैट्स इक्वल टू RHS. राइट? ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड. जल्दी जल्दी. आस्था, want me to repeat? Kashifa, you guys are new to my style of teaching, so let me know if you want me to repeat anything. In your books or in your schools, they will not do it. They may not do it this way. But उसके लिए फिर मुझे आपको ना GPUP बताना पड़ेगा. So as of now, I am not doing that by GP. Sum of GP का फॉर्मूला होता है sum of GP.
ये जीपी में आएगा तो होता है a r पावर ऑफ n माइनस वन बाई आर माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो, इक्वालिटी ऑफ two complex numbers. When do you say the two complex numbers are equal? A plus IB is equals to 3 plus I5. ये equal तब होगा जब रियल पार्ट बराबर होंगे और imaginary will be equal to imaginary. So this will be true only when A equal to 3 and when B equal to 5. Very simple. Right, okay, if you have understood. How easy? Let's take a simple question. x और y का वैल्यू निकालना है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो दूसरे के इक्वल है। ये मैं बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो। क्या बनाना है यार, ये तो रियल पार्ट बहुत इजी है। यू ट्राई इट, इट्स वेरी इजी। टेल मी द वैल्यूज ऑफ x एंड y, मेक इट फास्ट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होगा? व्हेन द रियल पार्ट्स विल बी इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट्स। फॉर x एंड y, डन। लिखो डन। All right, very easy. Let us finish it. कशिफा नहीं आया, आस्था, महिमा. All right. Only one person has done it. 1, 2, आस्था also. Okay. तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका रियल पार्ट है 2y, इसमें रियल पार्ट है सिर्फ 5. तो 2y should be equal to 5. Then definitely y is equals to 5 by 2. That's it. इस कॉम्प्लेक्स नंबर में imaginary part है this one, and here the imaginary part is entire -2. okay, सिर्फ i छोड़ करके बाकी पार्ट को कंपेयर करना. that means 3x minus y should be equal to -2. so 3x is equals to -2 plus y, and what is the value of y? 5 by 2, 1 by 2. Right, got it, if you have understood. Got it. Next लिखो, modulus of a complex number. बहुत easy. Modulus क्या होता है? People, let me help you recall. Suppose there is a complex number 3 plus 4i. इसको हम लोग z रिप्रेजेंट करते हैं. x एक्सिस रियल वैल्यू, y एक्सिस इमेजिनरी वैल्यू. इसको अगर मैं कहूं पीयूष प्लॉट करो मतलब कि इस आर्गेंड प्लेन में, इसका नाम क्या था? आर्गेंड प्लेन या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन. इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाओ कहाँ है. तो आप बोलोगे x रियल वैल्यू है 1, 2, 3 स्टेप्स. तो x एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स जाना. फिर इमेजिनरी वैल्यू है 4 स्टेप. तो 1, 2, 3, 4. तो 4 स्टेप यहाँ आने के बाद 4 स्टेप ऊपर, 4 स्टेप ऊपर आओगे तो यहाँ पहुंच जाओगे.
सो योर पॉइंट इज ओवर हियर एंड इट्स का कोऑर्डिनेट लिखोगे 3,4 और बगल में लिख देना z। महिमा इधर देखना, अगर मैंने इस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया, समझ लो ये पॉइंट यहां मान लो, सेंटर से जोड़ दिया तो इस लेंथ को ओ ए, मान लो ये पॉइंट ए है, देन दिस लेंथ ओ ए is called modulus of that complex number, modulus of that complex number। modulus बोले तो magnitude भी चलता है, magnitude of that complex number। I hope you understand कि ये है 3 यूनिट और ये है 4 यूनिट, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5। सो व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? आंसर इज 5। सर नहीं समझ में आया सर, क्या कहना चाह रहे हो? सपोज देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस ib, देन मॉड z, मॉड ये जिससे लग गया ना मॉड, मॉड z इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सर नहीं समझ में आया सर, एग्जाम्पल z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5i, मॉड z का वैल्यू क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 16 प्लस 25 41। राइट, गॉट इट इफ यू हैव अंडरस्टूड, राइट, गॉट इट इफ यू हैव अंडरस्टूड। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं और मॉड्यूलस आखिर चीज क्या है? वेरी सिंपल, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग भी है। ऑलराइट, चलो एक आध क्वेश्चन बनाते हैं, जस्ट अ मोमेंट। देखो इधर मॉड्यूलस, मैं एक बना रहा हूं, उसके बाद आप लोग बनाओगे। जैसे कि इस केस में 3 प्लस 5i है ना, रूट 5 है, तो रूट 5i है, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? इसको ऐसे भी करते हैं, ठीक है, ऐसे 2 लाइन बना दोगे ना, तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? 9 प्लस 5 30। ये आसान है, ये आसान है, ये आसान है, ये आसान है। 1 से लेके 4 बनाओ, your टाइम स्टार्ट्स नाउ, जस्ट 1 मिनट। Clear? All right, your time is up. Lico done. Next question, 3 minus 4i, तो इसका मॉड्यूलस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, which is again 5. This is again very straight, square root of
7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। दिस वन का मॉड्यूलस क्या होगा? एनीबडी? राहुल, इसका मॉड्यूलस क्या होगा भाई? 3i। ये है 3i। अच्छा, ये तो 25 है कशिफ। इसका नेक्स्ट वाला 3i 3, दैट्स गुड, बिकॉज 3i प्लस 0 है। और अगर मैं आपको बोलूं ग्राफ में 3i कहाँ होगा, तो आप बोलोगे ना 0,3। तो 3 ही यूनिट तो है सेंटर से। मॉड्यूलस एक्चुअली मीन्स फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस, लिखो, डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ओरिजिन। ओरिजिन से कितनी दूरी है? 0 से 3 है, 3i। आप देख सकते हो 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3 होता है। ठीक है। Now look at the next type of questions। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे है 3 प्लस 2i का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस 3i। अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस नीचे वाला को ऊपर ले जाना। i मुझे नीचे पसंद नहीं है, तो मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं। तो बट अभी तक मैंने कॉन्जुगेट नहीं बताया है। लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो कॉन्जुगेट, बाद इसमें आएंगे। यहाँ पे लिखो कॉन्जुगेट। तो टाइम भी हो चुका है, फिर भी हम लोग सिर्फ कॉन्जुगेट पढ़ लेंगे। लिखो, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जितना स्लो पढ़ा रहा हूँ, आई एम श्योर नोबडी इज मिसिंग आउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट? जैसे कि सपोज देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4i। सो दिस 3 प्लस 4i अगर मैं लिखता हूं z बार, इसका कॉन्जुगेट हो जाता है 3 माइनस 4i और माइनस 3 प्लस 4i। सर नहीं समझे, फिर से देखो। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दिया हुआ है, इसमें दो साइन होता है, इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, मान लो। अगर इन दोनों साइन में से किसी भी एक साइन को अगर आपने चेंज कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो इसका कॉन्जुगेट होगा। जैसे कि प्लस प्लस को मैंने प्लस माइनस कर दिया, तो ये z बार कहलाएगा। तो हम लिखेंगे z बार इज अ कॉन्जुगेट ऑफ z। एक और तरीका है, इस प्लस को चेंज कर दो, रियल वाला पार्ट को चेंज कर दो, इमेजिनरी को एज इट इज रहने दो, तो z बार ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। सर नहीं समझ में आया सर, एक और एग्जांपल लेना सर। z इज इक्वल्स टू -5 माइनस 8i। तो z बार मैं क्या लिख सकता हूं? इसको सेम रहने दो, माइनस को कर दो प्लस, तो हो गया इसका कॉन्जुगेट। या तो इसको बदल दो और इसको सेम रहने दो, मतलब माइनस का माइनस रहने दो, तो कॉन्जुगेट या तो ये कह सकते हो या तो ये कह सकते हो। इंटरेस्टिंगली, अगर आप इस z को इसके z बार से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो i खत्म हो जाएगा। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर।
सर नहीं समझ में आया सर, क्या कह रहे हो? चलो मल्टीप्लाई करो. व्हाट इज z 3 प्लस 4i? व्हाट इज z बार 3 माइनस 4i? a प्लस b into a minus b is a square minus b square formula. So what is a square? 3 का square minus b क्या है? 4i. So 4i का square. What is 4i का square? Anybody? minus 16 ना, मतलब 4 का स्क्वायर 16, i स्क्वायर होता है -1, तो हो जाएगा -16. ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा 9, तो क्या बचेगा? 25. i चला गया. लिखो got it if you understood the definition of conjugate. नेक्स्ट एक ये पॉइंट लिख लेना कि z into z बार is always a real number. And that's it. Time is up. So ठीक है. That's it for today. We will take up more on this because already time हो चुका है. I'll let you know the next class timing. Okay. चल. Have a good day. I'm ending the call now. Yeah.